Yeah, and I'll keep it somewhere near you. So, yeah, you can just tell me like how it started. You're not an alumni or something, right? No, He is no. a- Oh, you are? Okay. He is still a PhD scholar here. He has Okay. I not was about completed to I his PhD. submit my thesis, but due to Corona and all, I stuck to No, that. so you're PhD under whom here? Professor Rajiv Sangal. Okay. So I am here since last more than 15 years. I am from 2008. 7, Ah, 13th April I 2007. am more than 15 Okay. years. You in PhD only, or you No, did no, I have, masters He and I did have his done masters masters and here only. exits, and then again enrolled to PhD. PhD is almost finished. Now I have to submit it. Oh, so you've had a long association with IIIT then? Yeah. So it was since 2007. I am here only. Mm-hmm. Okay. And like, in which field did you start off with? Language translation? Yes, language translation. Professor Dipti Mishra and Manish Srivastava and Professor Rajiv Sangal were there. They are two terms of director, and then he goes to BHU. Yeah. And after that, most of people knows me by face, at least by name, maybe. Okay. LTRC language translation, language technology department, everybody knows because of we are very closely associated more than 15 years. So more than 10 years there was a project we are working on that. Which one? Language technology, ILMT project. Indian language machine translation projects funded by Government of India Okay. in 2007, and it was stopped in 2016. So what was the objective of that project? Objective is to build the machine translations because of lot of content is available in English or maybe in Hindi. Can those content can be transformed in other languages like Telugu, Marathi, Bengali, Hindi, Urdu. So there is 9 languages and 9 institutions: IIT Kharagpur, IIT Bombay, CDAC Noida, Pune. So the consortium was built, and the consortium leader is IIT Hyderabad under the leadership of Professor Rajiv Sangal. Okay. So that project is going on very well, and then that got be stopped. And whatever built under that project, we have taken the technology as a transfer to our startup. Oh. And then we'll start it in 2016. We have incubated in CI. Okay. And from that we are just started and giving the translation services to our customers. And IIIT is also one of the customers because of we have to build lot of data translations in LTRC, also with the video translation, subtitling, all these kind of work. Even recently, just in March, January, February, March, we have translated Urdu to Hindi in one of the projects, Okay. the Bhashni project. We are using it. So this challenge is also from the Bhashni institutions of Government of India. So they are especially focusing the language ecosystems. Okay. आप थोड़ा वो बताइए बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाई द स्टोरी के हिसाब से यू स्टार्टेड. Yeah. स्टोरी से पहले मैं बहुत सारा बात हिंदी में बोलूँगा. Okay. रीज़न बीइंग कि हम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, राइट. मतलब आई एम गिविंग कैविएट्स, राइट. हमें कहीं ना कहीं लगा है कि मैं जब से आईटी में हूँ, मैं काफ़ी पहले से आईटी से में हूँ. मतलब आई मे बी यदि आईटी दुनिया का जनरेशन है तो 3rd जनरेशन आईटी आदमी हूँ मैं, फ्रॉम 91 to 3 onwards, right. So we have found कि we have been talking a lot about IT superpower, IT superhighway, and this city was actually IT city. Otherwise ये city को पहले लोग सरकारी city के रूप में जानते थे. ये ECIL, ये वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं, DRDO, but not otherwise. Means few names, I am not naming them. वो नाम सब इस शहर में आए तो इस शहर को वर्ल्ड मैप में पोजीशन मिल गया. उसके पहले दूसरे कारण से पोजीशन था. बट हमें लगा है कि आईटी बात कर सकते हैं, और वो सिर्फ वही 11-12% लोग हैं जो अंग्रेज़ी सुन के काम चला लेते हैं.
बोल वो भी नहीं पाते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात है, बट उनकी ज़िंदगी चलती है और हमारा देश भी उसी से रिप्रेजेंट होता है। तो फाइनली यदि हम सच में, हम कहीं नहीं कहते हमें सुपर पावर बनना है, बट पढ़े लिखे समाज बनना है, तो लोगों को अपनी भाषा में पढ़ने लिखने का चीज़ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है कि अंग्रेज़ी सीखते हुए ज्ञान विज्ञान सीखें, और एक है कि हम सीधे ज्ञान विज्ञान सीखें। दुनिया में ज़्यादातर समाज सीधा ज्ञान विज्ञान सीखा है। एक भाषा के थ्रू ज्ञान विज्ञान को सीखना, दो बातें हो जाती हैं, फिजिक्स भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए अंग्रेजी समझ में आना चाहिए। तो इस कारण से बच्चे चौथी पाँचवीं पहुँचते पहुँचते सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी भाषा नहीं होती है, घर पे जो भाषा बोलते हैं उनकी भाषा नहीं होती है, so they stop speaking. So we have, you can say as a mission, what ई भाषा मिशन हमारा क्या है? Our mission is, क्या हम भारतीय भाषाओं को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने के लिए कुछ बना सकते, कुछ कर सकते हैं? Now that's with a question mark. This is a mission. So what do we contribute? उस मिशन में हमारा गोल क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? There we say, okay, fine. We have been doing this Indian language technology. He came here in 2007. I came here in 2001 actually. Professor Sangal had asked me to come for PhD. But whatever reason, I had met Sangal that time. Kamal, Professor Kamal. When Professor Bendre was there, and obviously Vinit Chaitanya, Amba Kulkarni. Very early in the founding time. So that point of time, Professor Sangal said, come and join PhD. No, but what were you doing that time? I was a software engineer. I am still a software engineer. But he did PhD from नहीं, I did later on. I did PhD. ठीक है, उसको हमने बाद में PhD किया ये NIT इलाहाबाद से, whatever है। तो उस वक्त मैं कुछ हमारा अपना पर्सनल कंपल्सन था कि हमारी जस्ट शादी हुई थी, और तो ये सब डोंट पुट इट एज ए पार्ट। No, but I need to understand why obviously. Professor Sangal approached you, right? नहीं, he didn't approach me. Basically there was a advertisement कि PhD करने के लिए स्कॉलर्स ढूंढ रहे हैं। Okay. I applied. In the advertisement it was there कि you have to come for an interview, you have to come for a written test, and I simply found कि there was a call from the office, Rambabu's office, कि he will like to meet you, can you come down to Hyderabad? I came here. Professor Sangal said कि हाँ ठीक है, तुम आ सकते हो सीधा। He said, he started with that, तुम आओ। एंड वो उन्होंने मुझे सभी लैब उब दिखाया। वो ज़माना थोड़ा बस उस एकेडमिक ब्लॉक में होता था, ये सब ब्लॉक में कॉर्पोरेट्स होते थे, हमारे सामने बने, ये सब तो नहीं थे। तो जो भी मतलब फॉर सम रीज़न आई कुडंट कम। एंड उसके पहले हमने IIT कानपुर के लिए भी कुछ काम किया था, जो आंग्ला भारती MT सिस्टम था, उसके लिए मैं काम किया था। दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज ए इंटर्न एट आवर ऑफिस। So that's where you met, is it? First year? नहीं, he joined expert. Actually both of us are alumni of expert software. When we came here, there was a industry partner which was a mandate of the project of ILMT. ILMT project had a government mandate that you should rope in an industry partner who will field deploy the research prototypes, build it into a complete machine translation system for 9 language pairs, and deploy it in the field so that it runs in the field, not on the desktop of the researchers. उसके पहले रिसर्चर के डेस्कटॉप पे वो चलता था, फील्ड में नहीं जाता था। हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि हमने उसको फील्ड में ले गए एज एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर, राइट। सो हमारा वी वेर रोप्ड इन फॉर दैट, वी डिड दैट टू आवर सेटिस्फैक्शन एंड होप to the institute, all research institutions, researchers' satisfaction. But for whatever reason, 2014-16 के आसपास में funding, there was no funding, and he was young. One of our founder, Sanket Pathak, he was a linguist, he is a PhD. He was also working in the same project here. So we had a team of almost 7-8 people working for ILMT project here as a consultant, right? We were industry partner for that project, and we worked from 2007. Expert software. हाँ, it is led by a TIFR scientist, Dr. Mukul Sinha, right? So he is
ही इज स्टिल So माय you are all डायरेक्टर। through that expert Right. software And became- then we found here. तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे 7-8 लोग थे। ही एंड संकेत वॉज यंग, बीइंग यंग, दे थॉट कि ये टेक्नोलॉजी को हम लेके कुछ यूजेबल प्रोडक्ट जो लोग यूज़ करें, एंड यूज़र यूज़ करें, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया था कि ये इंस्टीट्यूशनल यूज़ एंड ऑल तक तो ठीक है, बट ये एंड यूज़ या सर्विस कुछ हम दे सकते हैं इसके इस प्रोडक्ट से। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे रोप मी इन कि आप भी, तो आई ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द को फाउंडर्स and we founded, though we have 5 co-founders, but primarily it was interest of these 2 people, Dr. Sanket and Rashid. Primarily he had done MS here, he was a PhD linguist, तो दोनों का सिनर्जी बैठता था, दोनों साथ थे, दोस्त थे, तो दे आई ऑल्सो ज्वाइंड इट। तो 2016 में इन्होंने कंपनी बनाया, लेकिन उसका मिशन बहुत ही क्लियर है, क्या भारतीय भाषाओं में हम ज्ञान विज्ञान कर सकते हैं, इसका जो कंटेंट है क्या, अब इसके लिए हम करेंगे क्या। सो वी थॉट कि हम टेक्नोलॉजी को लेके आगे जा सकते हैं। हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम थोड़ा बड़ा इंजीनियरिंग रिसर्च करते हैं कि सिस्टम को फास्ट कैसे बना सकते हैं, रोबस्ट कैसे बना सकते हैं, सिस्टम के किसी कंपोनेंट का भी एक यूज़ है, हम कोई दूसरे तरह से देख सकते हैं क्या। ऑल दिस वी हैव डन इन आवर लैब नाउ। सो व्हाट ई भाषा डज, ई भाषा थिंक्स कि व्हाट दीज कंपोनेंट्स ऑफ NLP components that are available in open source or institutional, whatever, can we build applications, NLP based applications based on them. So that is our what we build, what we do. Okay. So NLP applications based on open source NLP technology or sometimes even proprietary. We can, ऐसा नहीं है कि हम किसी से ले नहीं सकते सर्विस, हमें ज़रूरत पड़े तो हम लेके, किसी को दूसरे को सर्विस चाहिए हम बना के दे सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिक थॉट प्रोसेस। तो आपको मिशन बता दिया, आपको ऑब्जेक्ट हम करते क्या है। जब हम स्टार्ट किए तो वी थॉट कि हम ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म लोगों को देंगे, तो इंस्टीट्यूशंस विल बाय दैट प्लेटफॉर्म, बट द ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म इज स्टिल नॉट मैच्योर एंड द MT सिस्टम्स, दैट बेस्ट ऑफ द MT सिस्टम, द गूगल MT इज़, वो भी लोग बोलते हैं कि उसमें एडिट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम उसको पब्लिकेशन, एंड वी थॉट कि नो, वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान की भाषा जिस्टिंग के लिए नहीं होती है, वो समझ के लिए होती है। वी आर नॉट रीडिंग सम इंफॉर्मेशन, हम रेलवे का इंक्वायरी में जाकर कुछ रेलवे का पता नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं, राइट। हम यदि न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ हैज़ टू बी ऑथेंटिक, ट्रस्टवर्दी, इट कांट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, बिकॉज समथिंग इफ इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड देयर आर 10 errors, I will even don't trust the news itself. Now that's a psychic part that we have to understand. कि अंग्रेजी, हिंदी या बांग्ला पूरा गलत लिखा हुआ है, तो इवन सही बात पढ़ने के लिए मैं इंगेज नहीं हो पाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा उसको पढ़ना। तो वी coined a term for ourselves कि we will give you trustworthy publication grade language services. Whatever language services you will ask, if at all we have a technology or the application built, we will provide you. Or sometimes we can build those services, customize something for a specific customer. So we have been doing this. So it's little bit of NLP is always there in whatever things we do, right? Like we have a translation service ka platform where translators can come and do the translation. Now what we have done, what the second level innovation, basically we are engineers, so we thought कि इंजीनियरिंग बेसिक चीज़ बताता है कि भाई कोई चीज़ को प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा वर्ड है किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का 2 तरीका हो सकता है, एक है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर लें, दूसरा है कि हम काम जब कर रहे हैं तो हमें रीवर्क नहीं करना पड़े, मतलब हमारी गलतियाँ कम हों। नाउ ट्रांसलेशन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मशीन करता है तो उसमें गलतियाँ रहती हैं, राइट। तो हमने सोचा इस गलतियों को सुधारने के लिए हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे तो गलतियाँ कम हो जाएंगी। तो हमने उसके लिए इनोवेशन किया, और हमने जो इनोवेशन किया ये कि यदि कुछ पार्ट को बांट दिया जाए कि एक आदमी एक काम जो बार बार करता है उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, एक ही तरह का काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन वही आदमी 7 तरह का काम करता है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, वो हो सकता है बहुत अच्छा करता हो। तो वी हैव built in our platform, or we have claimed, or we say this at least,
कि हमने आर्टिशन मोड ऑफ प्रोडक्शन को इंजीनियरिंग अप्रोच को लगा के फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम बनाया है, फैक्ट्री मोड ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो आर्टिशन, हाँ, आई विल गिव यू इन राइटिंग ऑल्सो, डोंट वरी, वी हैव फ्यू थिंग्स. हम होता क्या है कि हम बहुत मेटिकुलसली कोई चीज़ नहीं करते, तो हम बोलते भाई उसको देने से पहले मेटिकुलसली करो, क्योंकि जिसको दे रहे हो उसको फिर ये नहीं लगे कि अरे क्या समझ में नहीं आ रहा, राइट. सो इट्स ए आर्टिशन मोड ऑफ प्रोडक्शन. आर्टिशन मोड ऑफ प्रोडक्शन इज आर्टिशन. वो मोची का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या करता है, वो चमड़ा भी खुद बनाता है, चमड़ा बाज़ार से लाता है कई बार, नहीं तो चमड़ा भी खुद प्रोसेस करता है, रॉ स्किन को प्रोसेस करता है, एनिमल स्किन को, फिर उसको कुछ और प्री प्रोसेसिंग करता है, फिर काटता पीटता है, फिर जूता सिलाई करता है, लोगों का जूता डिज़ाइन भी खुद करता है, बेचता भी खुद है. आर्टिशन कैन डू थिंग्स वेरी नाइसली. कोई भी हथकरघा करने वाला, राइट, हैंडलूम वाला बहुत अच्छा कर, बट वो स्केल नहीं हो सकता है. उसमें उसका रोल उसके बिना कुछ नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बच्चे को सिखा लेगा तो परिवार तक हो सकता है. बट द मोमेंट आई सेड आवर मिशन, क्या भारतीय भाषाएं ज्ञान की भाषा बन सकती है, जिसमें ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है, कि हम क्या फिजिक्स, हम क्या CMC वेलोर में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आया, दीप्ति जी ने कहा हमें कि CMC वेलोर को क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो 2 तरह का फॉर्म होता है, एक कंसेंट फॉर्म होता है और एक इन्फॉर्मेशन सीट होता है. इसको उनको करीबन उनके यहाँ 4-5 रीजन से बहुत सारे लोग आते हैं, दे आर पुअर पीपल कई बार, तो अब उनको साइन करने बोला जाता है, वो बिना पढ़े साइन करते हैं. बट क्लिनिकल ट्रायल हैज़ ए मैंडेट दैट हैज़ टू बी गिवन टू देम इन देयर नेटिव लैंग्वेज. नाउ समटाइम्स दे गेट इट डन इन नेटिव लैंग्वेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट नेटिव. बीमार आदमी ये नहीं सोचता मुझे क्या साइन कर रहा है, बेचारा साइन करता है, बट उसको हमारे ड्यूटी तो है कि भाई हम उसको उस तक पहुंचा दें. तो मैम ने इस काम को लिया और बहुत ही दिक्कत से हमें दिलवाया. दिक्कत से मतलब सी हैड टू सर्कुमेंट ए लॉट कि हम देखेंगे तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा, बट डू दिस, एंड वी एग्रीड बिकॉज दैट वाज अ गुड चैलेंज फॉर अस, and we could deliver. You can ask her, I do not know to her satisfaction or not, to CMC's satisfaction or not, but we have been doing it years after years, so we feel कि we have done some justice to the work. तो हम करीबन बंगला में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, हिंदी में, राइट, इतनी भाषाओं में हम उनको कई इन्फॉर्मेशन सीट, कई 3 to 4 years 3-4 साल तक करके दिया. ऑन एन एवरेज उनका 80 ऐसा क्लिनिकल ट्रायल चलता है. एक बार CMC के बोर्ड ने भी हमें इसके लिए इनवाइट किया था, मैम ने हमें वहाँ भेजा था, एंड दे वर थिंकिंग ऑफ ए बिगर प्रोजेक्ट कि ये काम आपको दे दिया जाए, जिससे कि आप इस टाइप का, हमारे पास और भी कुछ काम है, हम वी हैड विजिटेड देम, वी मेट देयर बोर्ड, दे हैड इन प्रिंसिपल एग्रीड की वो, बट वो भी फाइनली हुआ नहीं. तो हमारे लिए वो बिज़नेस होता लेकिन नहीं हुआ. तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ हम करेंगे, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी होना है, वो गलत नहीं हो सकता क्लिनिकल ट्रायल का कोई चीज़, क्योंकि फाइनली इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट. एंड अदरवाइज ऑल्सो इफ समबडी जस्ट बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और ही इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड, व्हाई शुड यू प्रोवाइड हिम इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट करेक्ट. क्या आप चाहोगे कि आपको कोई आदमी जस्ट कुछ चीज़ डोमेन नहीं जानता हो तो आपको कुछ भी सीट दे और आप साइन करें? ये हमारा ड्यूटी है एज ए सिटीजन कि हम किसी को चीट नहीं करें, तो उसको सही चीज़ मिलना चाहिए, और कल वो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा वो क्या पढ़ रहा है. इसी तरह मान लीजिए 7th क्लास का हम कुछ एडुटेक का काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि NCERT में ऐसे, तुमने बोला ठीक है NCERT आज किसी एक स्टेज पे है, बट इफ़ वी थिंक कि NCERT विल पब्लिश ए तेलुगु बुक, इट शुड गो टू ए बेटर स्टेज. आज कुछ हो सकता है, बट वो भाषा ऐसी नहीं. अभी क्या है कि बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे ट्रांसलेशन, गूगल, व्हाट गूगल डज, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, अगेन नॉट बीइंग क्रिटिकल टू गूगल, यू शुड नॉट कोट ऑल्सो. अभी हाँ, अभी गूगल क्या करता है, ऐसी भाषा यूज़ करता है जो NCERT में पढ़ी हुई है. अभी आपको बोलेगा प्लेटलेट काउंट कम हो गया, आप बताइए मैं हिंदी में बोला हूँ अंग्रेजी में बोला हूँ? ये तो हिंदी में बोला हूँ. डॉक्टर भी यही भाषा बोलता है, परचून के दुकान वाला भी यही भाषा बोलता है, और मेरा हिसाब से कोई भी तेलुगु स्पीकिंग भी, इफ़ एट ऑल ही स्पीक्स इन हिंदी, ही सेज द सेम लैंग्वेज. मेरा प्लेटलेट काउंट हो गया, डेंगू हो गया. वाई यू वांट टू ट्रांसलेट डेंगू, वाई यू वांट टू ट्रांसलेट प्लेटलेट? आप टेलीफोन को ट्रांसलेट करते हैं क्या? दूरभाष कोई भी नहीं बोलता है. मैं तो उस ज़माने में आया हूँ जब दूरभाष लिखा जाता था कम से कम. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट गूगल हैज़ ट्राइड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट देर आर थिंग्स वेयर वी कैन पिच इन एंड सप्लीमेंट दैट. आई एम नॉट सेइंग कि हम गूगल से अच्छा कुछ बनाएं,
बट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि गूगल से यदि कोई चीज़ छूट जाती है उसको करने के लिए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस करो, एंड दोज टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन शुड हैंडल टू थिंग्स। वन इज़ वो ट्रस्ट को गिराए नहीं, ट्रस्ट को नहीं गिराए मतलब एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन नहीं गिरे, लेकिन कवरेज एरिया बढ़ाए। अभी गूगल आपको ऐसा ट्रांसलेशन देगा, जैसे मैंने कहा, और प्लेटलेट को कुछ ऐसा वर्ड बोलेगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिम्बाड़ो बोलते हैं, बिम्बाड़ो। हाँ, अब बोलिए, ऐसा कुछ शब्द बोला, हम वहाँ भेज देंगे, हम तो करते हैं बाई चांस। वी हैव द लास्ट 1 year वी हैव डन लॉट ऑफ एडुटेक का काम, तो हमें वर्ड्स हमने उसको समझाया जिसका काम है। ही इज़ ए बिग नेम, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। वो बोला एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। हम बोले सी ए पायनियर डजंट थिंक ऑफ एक्सेप्टेंस। पायनियर का काम होता है हम करके जाएंगे, आने वाले पीढ़ी सोचेगा कि एक्सेप्टेंस है या नहीं, दे विल जज। अब बताइए, हमें से कोई भी आदमी मोबाइल बोलते, मोबाइल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? Something which is on the move. डज फोन दिस फोन मूव? यू मूव। बट इसमें फ़ोन वर्ड हम छोड़ चुके हैं। सो नाउ वी हैव बीन सेइंग दिस कि न्यू वर्ड्स डोंट गो बाय वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉइनिंग द वर्ड, borrow the words. Words will have difficulty in spelling when you spell out, in writing because of script. Something is very natural, right? Neurocystis sarcoidosis is a disease, but start writing it. आपको प्लाज्मा आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? प्लेटलेट लिखते हैं नहीं लिखते? तो न्यूरोसिस्टिस sarcoidosis क्यों नहीं लिख सकते? अभी क्या बोलेंगे लोग, वो फिर पढ़ नहीं पाएगा। हमने बोला एक्चुअली थोड़ा सा कॉग्निटिव साइंस जानते तो तुमको पता होना चाहिए कि पढ़ते तो तुम रमन का भी नाम र म न नहीं पढ़ते हो। र म दिमाग में आते ही दिमाग बोलता न हो गया आगे बढ़ो, वो न पढ़ता भी नहीं है। इफ़ यू हैव बीन इनटू दिस फील्ड यू विल नो दिस। सो वी हैव डन लॉट ऑफ स्टडीज दिस काइंड ऑफ, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन आवर मिशन। तो हम मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ हमको एज ए पायनियर, जो जहाँ एक्सेप्टेंस होगा वहाँ हम देंगे लोगों को। दिस इज़ वेयर ई भाषा इज रोल इज। वी आर सेइंग वी आर डूइंग ए जॉब ऑफ वो जुगनू, हिंदी में जिसको आप कहते हैं वो जो रात को ऐसे चमकता है, वो क्या जुगनू, टिम टिम टिम, छोटा एक अंधेरे में जो रोशनी देता है, एक कीड़ा, Oh, firefly. वॉट एवर, आई डू नॉट नो। हिंदी में जुगनू बोलते हैं। Okay. तो हम जुगनू का काम करेंगे। हम भाई कोशिश वही करेंगे जिससे फाइनली लोग समझेंगे। हम ये सोचें कि नहीं इससे कंपनी नहीं बढ़ेगी, इससे, Why do you use the word jugnu here? बिकॉज पीपल से उसका कंट्रीब्यूशन से कुछ नहीं होगा। Oh, okay. हमारा कमाना है लेकिन हम करेंगे वही। हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है बहुत सिग्निफिकेंटली ना हो, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन है जो बदलेगा। तो ये हमें कन्विक्शन है कि लोगों को ऐसा चाहिए। मतलब आप ऐसे शब्द बना के रख दिए हैं जिसको कोई यूज़ नहीं करता है। अरे भाई, मेडिकल साइंस का आदमी, वो आदमी पटियाला में पढ़ रहा है, उसने अंग्रेजी में पढ़ लिया, लेकिन जब वो इलाज करने जाएगा तमिल मतलब CMC वेलोर में, तो वो अपने शब्द को, टर्मिनोलॉजी को वही बोलता है या कुछ बदल देता है। आप क्यों तमिल में उसको चाहते हैं? उसको बोलने दीजिए कि भाई तुम्हारा यहाँ ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर हैज़ बिकम ए वेरी कॉमन वर्ड, लेट इट बी एक्सेप्टेड इन हिंदी। True. सो वी आर कमिंग देयर। हमारा जब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करें, वी आर सेइंग कि वी आर ई भाषा इज इनटू NLP टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी प्यूरिटेरियन, जहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं इसका शब्द बनाना ही पड़ेगा। वी से इसका वोकैबलरी लाओ, ये वोकैबलरी एक्सेप्ट करो, लेट पीपल जज, लेट पीपल फिगर आउट कि इससे बेहतर कुछ है, वो हम देंगे उसको। लेकिन हमारा काम कहाँ है? हमारा काम है उसके ट्रस्ट को गिराने नहीं देना है। इसलिए पब्लिकेशन ग्रेड होना चाहिए कि कोई आदमी ये नहीं कहे कि ये हिंदी भाषा में समझ में नहीं आ रहा, समझ में पूरा आ रहा है। वोकैबलरी हमने इधर उधर से किया होगा। ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको उसको समझ में आ रहा है। दूसरा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो दुनिया में कोई टूल कोई यूज़ नहीं करता है। सो वी हैव टू गिव दोज नंबर्स। कैसे हम बताएं किसी को? तो हम किसी को कहते हैं तुम देख लो, इस चीज़ को यूज़ करो, ये कोई ऐसा टूल नहीं है जो तुमने ये दबा के अभी काम करने लगे तो तुमको 1 मिनट में रियलाइज हो यस यार इट्स वेरी गुड, मैं वहाँ की बजाय यहीं से दबा के कर सकता हूँ। नहीं, दिस इज़ फॉर अ सीरियस बिजनेस। ट्रांसलेशन इज ए वेरी कॉग्निटिव टास्क एंड इट्स ए वेरी क्रिएटिव टास्क। सो द एक्चुअल यूज़र, और फॉर दैट मैटर एनी लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, somebody has to really practice it for few months
to really become proficient to use the tool. What are those productivity aids available there? Be familiar. His proficiency has to improve. And then we have data points in the last 4-5 years. जो लोग भी हमारे टूल को यूज़ करते रहे हैं 6 महीना साल भर, उनका कहना कई बार होता है कि हमारा एक पर्सनल काम है, वो उस पर अपलोड कर दोगे, हमें करने दे दो। हम जान के उनको बोलते हैं कि हाँ करिए, क्योंकि हमारे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि हम फ्री दे दें लोगों को, बट हम वैसे लोगों को whosoever comes asks us, we give them. So that's a proof that they are getting a productivity benefit by using the tool. Any tool is addictive in nature, but only after using it for some time. जैसे आप किसी कीपैड से भी यूज टू हैं तो आप यूज टू रहते हैं, फिर नया कीपैड नया मशीन खरीदते हैं, थोड़े दिन आपको फेमिलियर। सो वी से कि ई भाषा के प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रांसलेशन के लिए आए, चाहे सब टाइटलिंग के लिए आए, चाहे जो भी चीज़ों के लिए आए मोस्टली, तो ये हमारा बेसिक एज ए कंपनी का फिलॉसफी क्या है, क्या कंपनी करना चाहती है, यही करना चाहती है। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ट्रांसलेशन, but we have been getting businesses currently in translation, mostly in translation. We have done few other things also, but not on a larger scale. And you said only Gyan Vigyan, so it's like only science and No, ज्ञान विज्ञान में सोशल साइंस में ज्ञान नहीं होता है, साहित्य में ज्ञान नहीं होता है, मास कम्युनिकेशन में ज्ञान नहीं है। विज्ञान को हम अलग से इसलिए बोल देते हैं कि लोग ज्ञान विज्ञान का मतलब बेसिक मतलब होता है उन सब जगह जहाँ सिग्निफिकेंट कंटेंट है। इंफोटेनमेंट में कंटेंट है। आप मान लीजिए टाइम्स इंटरनेट, राइट, दे वर आर वन ऑफ द बिग कस्टमर्स। अब वो अपने फैशन के पोर्टल पे या ऐसे पोर्टल पे, हेल्थ केयर के पोर्टल पे, अब वहाँ पे आप यदि लोगों को समझा रहे हैं, हमने उनसे भी कुछ सीखा, उनको भी कुछ बताया। दे सेड कि अभी बाल के बारे में आप कुछ बताओगे किसी को कि जेल होता है, अब जेल का हिंदी आप लिखोगे कोई नहीं समझता है। फार्मेसी वालों का दवा का प्रिपरेशन करीबन 40 तरह का होता है। आप 40 शब्द आपके इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं है, आप क्यों कोलाइडल का आप हिंदी क्यों बनाना चाहते हैं? ठीक, बुक में किसी कारण से रीज़न से लिख दिया, कुछ बना दिया, बट डज एनीबडी यूज़ दैट? नोबडी यूजेस दैट। हम इसको ग्लास कहते हैं, आप बताइए, ये इंग्लिश शब्द है, कितने सालों से हम ग्लास कह रहे हैं। सो वी ऑलवेज से व्हेन यू विल ब्रिंग इन न्यू वर्ड, दैट वर्ड विल नॉट have the meaning naturally coming out when somebody utters that word, but that utterance will have lot of meaning after the information density of the word increases with usage. When the word starts getting used by people, more and more people, its information density increases and वो word का बहुत सारा meaning अपने आप clear हो जाता है। जैसे इसको देखते ही मोबाइल बोलते हैं, स्मार्टफोन भी नहीं बोलते, सबको देख के स्क्रीन से समझ में आ जाता है स्मार्ट वाला है, बिना स्मार्ट वाला मेरी तरह नहीं है, राइट। उसका साइज से भी उसको समझ में आता है कि अच्छा ये वाला है, ये स्मार्ट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये सब चीज़ों को एज ए कंपनी फिलॉसफी वी हैव बीन इनटू इट। हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके हर साल कुछ नया करने का कोशिश किया है, कुछ नया लेके आते हैं। हमने दूसरे डोमेन से भी कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे हमने कहा कि आर्टिशन को हमने फैक्ट्री मोड में किया, तो हमने क्या किया, आर्टिशन में हमने कहा कि जनरली एक आदमी एंड टू एंड काम करता है, सामान को लाना, सामान को बेचना, बीच का 4 प्रोसेसिंग या 5 प्रोसेसिंग, हमने इसको बांट दिया। हमने कहा कि देखो कुछ लोग हैं मोनोलिंगुअल हैं, हमारा कुछ टास्क मोनोलिंगुअल होता है, कुछ लोग को कुछ टास्क हमारे बाईलिंगुअल हैं, तो हमारे लोग बाईलिंगुअल चाहिए। सो वी स्टार्ट्स लुकिंग टू द होल लैंग्वेज सर्विसिंग इन दिस मैनर। हमें कुछ डेटा एनोटेट करना पड़ता है, हमें वहाँ इंग्लिश के लोग चाहिए, हमें वहाँ हिंदी के लोग नहीं चाहिए। हमें कुछ प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, वहाँ हिंदी के लोग चाहिए, वहाँ इंग्लिश के लोग क्यों चाहिए? बट इफ़ एट ऑल आवर प्लेटफॉर्म गिव्स दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी beyond the machine translation systems which we have plugged into our platform, it's a big platform. So what we said कि depending upon the skills, its hierarchy, right, we will do a division of labor, and that is what is factory production is all about. So we have divided a language processing task into a monolingual task, into a multilingual task, right? And then we have said hierarchy of skills. For something lower skill people can still work. For there are certain things where you say flow of the content, style of the content, right? Cohesion of the content,
कोहेसिव है या नहीं है, एक पैरा दूसरे के कोहेरेंट है या नहीं। हम बुक ट्रांसलेशन कर रहे थे, सो वी थॉट कि यार ये सब रिक्वायरमेंट है। लोगों ने बोला चैप्टर में हर पैरा ऐसा लग रहा है तुमने वो पैरा कहीं से उठा के लिख दिया, ये पैरा कहीं, जबकि वो किसी बुक का ट्रांसलेशन है। बट देन व्हेन समबडी हु नोज कॉपी एडिटिंग, हु नोज व्हाट इज बुक ट्रांसलेशन, व्हेन दे जस्ट रिव्यूड इट, दे एडेड फ्यू थिंग्स, सम प्रोनाउन referencing, some anaphora referencing they did manually. It was no machine intervention, manually, and the flow of the book improved. So what we have done is division of labor, hierarchy of skills. So there will be different people working on the same task, and now when we say how do we improve the turnaround time, now we can parallelize the task. Now when you say parallelize the task and with a human intervention, every human will have its subjectivity. सो हाउ वी विल हैंडल दैट सब्जेक्टिविटी कि एक बुक का चैप्टर एक जैसा लग रहा है, दूसरे बुक उसी बुक का दूसरा चैप्टर दूसरा ऐसा लग रहा है किसी और ने ट्रांसलेट किया। सो वी सेड वी विल गो बाय सम यूनिफॉर्मिटी गाइडलाइंस, कंसिस्टेंसी वैलिडेशंस कि इस चैप्टर में ये वर्ड ऐसे ही लिखा गया है, इस चैप्टर में भी ऐसे ही लिखा जाए। सो आवर टूल गिव्स दिस काइंड ऑफ सम हेल्प, टूल लेवल, सम सॉफ्टवेयर हेल्प, इट अलर्ट्स यू कि आपने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखना था। तो रिव्यूअर को ध्यान आता, हाँ मैंने ऐसे, वो खुद ही लिखा है लेकिन उसने उस चैप्टर, क्योंकि इट्स अ बुक की ट्रांसलेशन इज 7 day 8 day टास्क। अभी यदि जो काम 1 महीने में होता है उसका हमने टर्न अराउंड टाइम भी घटाया। क्यों? क्योंकि वी हैव डन ए डिवीजन ऑफ लेबर, राइट, कि एडिट कोई और करेगा, रिव्यू कोई और करेगा, प्रूफ रीडिंग कोई और करेगा। तो जो थोड़ा एडिट हो गया वो प्रूफ रीडिंग में चला गया। सो इट इज़ नॉट वेटिंग फॉर दैट सेम आर्टिशन टू डू द होल टास्क, राइट। सो फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस का फैक्ट्री मोड प्रोडक्शन में लाना आर्टिशन मोड प्रोडक्शन से। व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड सम इंजीनियरिंग अप्रोच। इंजीनियरिंग अप्रोच इज टिपिकली डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट। यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी कैसे देखोगे, तो मशीन को बोलो कुछ कुछ चीज़ चेक करेगा। जैसे हमारा ह्यूमन एरर होता है, डिटर्मिनिस्टिक एरर है, स्पेल चेकिंग, हमने स्पेल चेकिंग के लिए एक लिमिटेड स्पेल चेकिंग बना दिया। उससे सी इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डूइंग इम्प्रूविंग थिंग्स। इट नेवर सेज कि हमने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, फिर तो कोई इंजीनियरिंग होगा नहीं। तो हम हमेशा कहते हैं कि 80% ठीक कर देगा मशीन, हाँ ठीक कर देगा तो हो गया ना। 20% ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए तो हम बैठे ही हैं। So you are saying that if you use your application, Yeah. 80% will be Lot of things. Sometimes 80%, sometimes 60%, sometimes 100%. Human to kind of look Right. at. We said it's a pure cognitive creative task. Any language processing task is a pure cognitive task. Otherwise lot of application systems बन जाते हैं। जो भी बनते हैं सब में होता है कि भाई देख लो, गूगल भी आपको देता है तो आप कहते हैं एग्जिस्टिंग के लिए है, पब्लिकेशन ग्रेड नहीं है, राइट। आपको यदि सेंटिमेंट एनालिसिस भी देते हैं तो आप बोलते हैं ये मुझे एक इंसाइट देता है, इससे मैं मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेता हूँ, राइट। सिटी बैंक का सेंटिमेंट एनालिसिस डजंट से कि इसके बेसिस पे किसी आदमी को फायर कर दो, बोलता है ये बता रहा है कि कस्टमर्स दुखी हो रहे हैं, सो लेट अस लुक इनटू इट। फिर बड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। सो इट हेल्प्स यू। टेक्नोलॉजी का काम ही है आपके वक्त को बचाना और आपका कॉग्निटिव एग्जॉशन को घटाना, कि मैं थकूँ नहीं, मैं 4 घंटे के बजाय या तो 4 घंटे भी काम करने के बाद फ्रेश रहूँ, या 4 घंटे के बजाय मैं 6 घंटे काम कर पाऊँ। बिना टूल के मैं 4 घंटे काम कर पा रहा था, आजकल मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ। या फिर कोई कह सकता है मैं पहले 4 घंटे काम करता था ना, समय नहीं बचता था, अभी मैं 3 घंटे में वो काम ख़त्म कर लेता हूँ, अब 1 घंटा अपना कुछ और करता हूँ। सो बेसिकली वी आर सेइंग एनी वे यू आर एडिंग टू द पर्सनस क्रिएटिविटी। उसका वक्त या तो बचा दिया या वो थका नहीं, दोनों क्रिएटिविटी को ऐड करेगा ही करेगा। और जब तक वो क्रिएटिव होगा तभी तक क्रिएटिव टास्क को जस्टिस कर पाएगा। जहाँ वो थक गया, कोई भी क्रिएटिव टास्क की क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग ए वेरी मैकेनिकल टास्क। नट टाइट हम नहीं कर रहे हैं कि नट टाइट कर रहे हैं एंड रिंच विल घूम गया तो हम समझ गए नट टाइट हो गया। वी आर नॉट डूइंग ए मैकेनिकल टास्क, वी आर डूइंग ए समथिंग विच नीड्स ह्यूमन कॉग्निशन। So this book translation you were talking about, Right. like who approaches you for publishing houses or? Once or twice authors have directly published approached us. हमने कितना बुक किया? 6-7। हमारे पास ज़्यादा धंधा नहीं होता तो 6-7 बुक किया, बट कुछ बुक हमने 8-9 लैंग्वेजेज में किया है, एंड दैट इज़ वाई दे केम टू अस। दे सेड उनको लगा कि ये सभी भाषा कर देगा, तो हमने ऐसे लोगों को रोपन किया जो रिव्यू करेंगे बुक का, एंड वी बिल्ड सम टर्मिनोलॉजी, नेम्ड एंटिटीज़, एंड देन वी पुश्ड इट इनटू आवर सिस्टम।
तो मशीन कुड रिकॉग्नाइज कि ये नेम एक नाम है, जगह का नाम है। ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान का मतलब क्या हो जाता है ट्रांसलेट? शाह दिशा नहीं होता है। क्या शाह? रू माने उर्दू में क्या होता है? दिशा होता है, डायरेक्शन। तो उसका मशीन करेगा तो ऐसा स्मृति ईरानी, स्मृति माने याद, याद ईरानी हो जाता है। ताजमहल मुकुट महल हो जाता है, ताजमहल। ये तो फिर भी आपको नियर लैंग्वेज में बता रहा, उर्दू हिंदी में बता रहा। जब इंग्लिश से हिंदी होता है तो क्या क्या बवाल होता है वो सोचेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सो दैट इज, सी मशीन हैज ऑलरेडी डन लॉट ऑफ थिंग्स बट देयर स्टिल रिमेन्स थिंग, एंड पर्टिकुलरली फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एंड पर्टिकुलरली एज आई टोल्ड यू, कंटेंट फॉर नॉलेज परकोलेशन, नॉट जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होने लगा है, लोग स्पेनिश मेल भी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और काम चला लेते हैं आज की तारीख में। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से ज्ञान नहीं बढ़ता है। और आप यदि समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, इफ़ आई पुट इट इन अ सिंपल टर्म, वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट पर कैपिटा नहीं है। सो इफ़ यू वांट, वही 12-13% लोग, 15% लोग ही इंडिया को आगे ले जाएंगे, तो ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी गलतफहमी है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी गलतफहमी दूर हो जाए, वो अपने आप रास्ते पे चलने लगेंगे। सो more examples of like that that clinical trial wala form, you know, somewhere where you know really it's impacting society and एजुकेशन आई टोल्ड यू, लाइक क्लास 10th का बुक, क्लास 6th का बुक, 7th का बुक, 8th का बुक, 9th का बुक हमने किया। translated from NCERT books, is it? Basically content was from NCERT only. It is for a edutech company. They want to build their own some gadget में बच्चों को बेचना है, स्कूल में बेचना, like Byju. So Byju is not our customer. Our customer is Tutorials Point. Tutorix. So Tutorix is also same thing. Similar Byju. But Tutorix content and presentation is very good as compared to Byju's. अब उनका आप कर रहे हैं, उनका आप कुछ कर रहे हैं और वो पढ़ रहा है। आपने कहा कि मेरठ के बच्चे को हम हिंदी में दे देंगे तो वो अच्छा पढ़ जाएगा, तो उसको अच्छा मार्क्स आएगा। अब वो हिंदी पढ़ रहा है, ही इज़ अनेबल टू रिलेट दैट हिंदी because the vocabulary that you are using, the books are available in Hindi, but when he reads Hindi he says कि यार ये तो अंग्रेजी से ज़्यादा भारी हो रही है, वो क्या पढ़ेगा? Let me give you some example. Even in Tamil Nadu we have examples. अभी इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले, आप देख सकते हैं, अप्रैल का न्यूज़ है, इतना मैं बता सकता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण कुछ भाषाओं में स्वयं प्रोजेक्ट का भी और कुछ प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग साइंस एंड ऑल का ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट को किया। हम लोगों ने भी यहाँ पे IIIT में स्वयं प्रोजेक्ट के लिए किया था। दोज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बाय वेस्टर्न यूपी में सम ऑफ द कॉलेज एंड स्टूडेंट्स हैव सेड कि हम कम से कम पढ़ के अभी समझ तो पाए कि क्या लिखना है। सी फाइनली यू वांट टू, one part is okay कि he has got literate, he has got a degree and he will get a job, but you want to go beyond that or not? If you want to go beyond that, he should be educated also. Educated means finally that knowledge has sipped in, percolated, sinked in। जब वो समझेगा तब होगा, उसके पहले तक वो गार्बेज इन गार्बेज आउट हो सकता है कि वो रात को पढ़ा, एग्ज़ाम लिखा, पास हो गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया, बट वो जब काम करने जाता है तो उसको फिर से वो बुक, वो थक जाता है, पहले ही थक जाता है कि यार मुझे अंग्रेजी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उसकी नेचुरली उसकी भाषा नहीं है। तो यहीं पे एक एडिशन और है कि कन्विक्शन पे वाई वी बिल्ड इट। तो व्हेन वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ओके, देन वी गो टू द कंपटीशन एग्जाम्स। तो वी फिल्ड एग्जाम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो at that point of time the exam is in English and our medium is Hindi, so we know Hindi very well, English is very little, means we have out of 10 1 is English or 9 is Hindi. Then we have write the exam and we are not got it, but when we are writing the exam, lot of questions are very easy, you just put the value and got the answer, but due to Hindi medium we are unable to solve those. It's very simple, like the parabola. In Hindi we can parvale or vale something. Okay, you can get the latest rectum of this circle or something.
So this is a very simple. There is a formula for A. The value of A is given. Then you can multiply by 4. You will get the answer. But we read it as a nabilam. Latus rectum in Hindi is nabilam. But we are not found nabilam. To calculate the nabilam, they said calculate the latus rectum of the parabola. Okay, parabola का nabilam निकालिए. अगर वो हिंदी में होता, I'll correct that. So this convictions I got it there, and also so I not got it exams. Okay, then I have done my 12th, and then I have again apply for graduations. In the graduation there is no exam at that point of time due to merit. So they have calculated the marks of the 12th and they have permitted to BA, BSc something. So I got it by chance at that point of time. I got the admission in BSc mathematics. Okay, so I have joined, and then once I have joined, I have lot of pain because the medium is in English. And So you're talking about Aligarh Muslim University? Yes. So Okay. I have done my post graduation Master of Computer Science and Application from Aligarh University. Then from here I have done my MS by research and now just about to submit the PhD. So at that point of time I have very hectic or something what we बैड can do, एक्सपीरियंस bad कि experience. भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. Sometime at that point of time there is no mobile. This is No internet also. 95 and 97. 95 is high school and 97 I was in the 12th. Then we go to the PCO. At that time PCO is there and there is very huge line. You have to kept in that line and wait it, and once the wait is there then you can call it. And even we do not have a phone at our home. So I'll call to the nearby home Neighbor or something. neighbors, and then can you just call me somebody into my home. Then I again put the line, maybe he will come and then I'll speak it. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इधर I can come or I don't know what happened because I have read in Hindi and now it totally is in English. कुछ भी समझ में नहीं. There is no technology at that point of time, no Google or translation, there was nothing. So this conviction is built at that point of time only. Then once I have completed my MCA, I have joined the company Expert Software, Dr. Mukul Sinha. So by chance, Dr. Mukul Sinha is associated various government institutions or other private organizations. So they are working in the language technology. So my conviction is, कुछ हो सकता है. Then this project is here in language technology, and then by chance the IIIT is associated with Expert Software, and I have a chance to come here, and then we have joined the project, and this project is going on more than 10-15 years. So we have some conviction, no bhai ye to problem solve hoga, because at that point of time we are very bad experience and we are unable to read and all. So the thought is connecting dots are there. Actually, what happens? So, I have but you did MCA from Aligarh Muslim University. and then MS by research here. From here, yeah. Oh. So I have joined Expert Software, then I have come here, and then this project is going on because it's a very long-term project. Then Professor Sangal has, just inquired us, if you want to pursue higher studies, so you can apply it. I have applied and got the admissions, and I have successfully defended. After that, we thought project will be closed and then we'll go back and something like that, so that I can exit it and take the degree of MS. But by chance the project is got extended or it got to the second phase for 4 years again. So if I thought at that point in time it is extended for 4 more years, then maybe I have completed PhD at that point of time, but I exited, it's okay now. So once that after 4 years, once that project is over, and there is a one way, either you go to the back or what you can do that. So our director, Expert Software, Dr. Mukul Sinha, said, you can think it. We can give you some funds as an angel investor if you want to do something in this area. You can do that. So basically, he gave that mentoring as well as the seed fund. Right, so we are only co-founders. We have not put in any money. So that conviction is built, and then we thought, no, it is very big problem. We can solve it now. The technology is in this stage that at least
अब जो लोग आएंगे तो दे मे यूज़ इट एंड दे डू नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस. If they have a Hindi background or corresponding Telugu or some other background, now they can translate it and they can use it, so that the vision or the mission of our company is that whatever knowledge is available, how much knowledge we can convert into the local languages, so that people of that language can be benefited, and the monetary aspect is there, because how we can run it. So if somebody wants to translate it their content, then they approach us and then we are doing those approaches. Yeah. So this was the basic history. Maybe because we are not giving so much formal and all, we are very informal. I don't know how No, much this we are is good. satisfied with Yeah. it. Maybe. So what's the difference between Bhashini, that project by the government of India, and what you are all doing? Bhashani is a government of India program under which they have put in some money and they are soliciting some projects, something. And then we do not know really, I am only trying to extrapolate. Whatever reason, they, after a year or so, they thought that they should give some impetus to that program, and they floated some challenges for startups. So first phase was for a startup or startup like companiयाँ, कि कुछ ग्रैंड चैलेंज है कंट्री के लिए. एंड सो दिस ग्रैंड चैलेंज वर्ड इज़ फेमस फ्रॉम ऑलमोस्ट 10-20 years. सो दे फ्लोटेड वन वाज OCR के डोमेन में कोई कुछ एप्लीकेशन बना के दे सकता है, बट रिक्वायरमेंट इज़ उस एप्लीकेशन के पीछे भासनी API यूज. मतलब टेक्नोलॉजी शुड बी technology which government has funded to various institutions, or whatever reason it is on their government platform. So you use their thing only to make API, a solution. APIs particularly OCR, machine translation, speech to text, text to speech. These four were there, right? And one was speech to speech translation. So again there is a speech technology, translation technology, and a speech technology. So we One second. So your focus is only translation or no, speech? our focus currently, with the limited manpower and the know-how that we have acquired in these 15-17 years, 20 years, currently we are directly approaching anybody if it is related with translation. But text to text? or- Text to text. Okay. If anything beyond something, but it is part of a task that if we will do this, then only they will give us the whole project. We are ready to take that, and then we figure out how to do it. Sometimes in-house, sometimes we outsource and get it done. So as a business, no, we can take anything into language processing. As it in-house capability, yes. Currently, text to text processing. Okay. One OCR also, the Bhasni mein the challenge that we have one is for OCR. Because we thought, okay, let us try this also. And particularly he has 2-3 people working here who got involved with Professor Jawahar last year, and they tried to do something on the OCR technology that they have built to reuse that OCR technology. Oh. And then we had some familiarity, so we applied for this grand challenge. And by chance we have won. So what is what was the problem statement? What is the solution that you proposed? Yeah. The problem they have already very specified on that web page which I have shared you. So there are two problems. One is related to speech translation. Another is the problem is there are a lot of pages or applications in the government offices. We have to digitize this and we have to translate it. The second problem is this. So we have applied for the second. Problems. So they have 2-3 stages. In the first stage we have applied it. They have screened it. Okay, how we can give the opportunities to the serious people. So they have screened the applications, and they have 6 people they have identified, and they have announced the result that these 3 people are screened and they can start working on the first phase of the problems. So we are there, and the other 5 are also there. All information is there in that portal. Then we have to demonstrate it. There is a committee or there is a people, they have judged it. So we have demonstrated
In the second round, we also qualified, and in the second round, they have reduced from 6 people to 4 people. And then in the second round also, we have done well, and we have qualified for the final round. For the final round, there are 3 people, 3 companies. So 6 to 4 and 4 to 3. So in the final round also, we are the winner, and the other 2 are the runners. This was the. Basically, it is solving a digitization, then translation, and what we had proposed as a application in the innovative part of it. We said there are a lot of documents which are in a paper format. So what is a story behind? Story what we built is. बहुत सारे डॉक्यूमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर के फॉर्म में है, कुछ डिजिटल भी हो सकता है ना, पेपर हो या डिजिटल हो, उन दोनों को स्कैन करके उसको एक्सट्रैक्टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, उसको सर्चेबल बना सकते हैं क्या, और कई बार जस्ट हमको उसको उसी फॉर्मेट में ट्रांसलेशन भी चाहिए, जैसे कि किसी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, अब वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंग्लिश में है, मान लीजिए हैदराबाद में मिला, लेकिन व्हेन ही गोज़ टू स्टडी इन सपोज सम अदर कंट्री विच requires that this certificate should be in Arabic, right? तो अभी क्या करें, तो वो इसको सर्टिफिकेट लेके आए, स्कैन करने के लिए डाले, स्कैन होगा, फिर इसमें से जो भी इंग्लिश टेक्स्ट है, तो इंग्लिश टेक्स्ट में 2 पार्ट होगा, एक होगा उसका नाम, सीरियल नंबर, डेट, एनरोलमेंट नंबर, एंड अदर विल बी द स्टैटिक टेक्स्ट कि सो एंड सो ये. नाउ वी सेड these kind of requirements, I am talking about one scenario, we have cited 4 kind of scenario there, I am talking about one scenario, and this is a big business means big requirement. No, I should not put it, so let me correct the word, big requirement. So people go to Mehdipatnam and tell, we have such connections, they told us कि ये बड़ा काम है, अब हमारे पास आते हैं, बोलते इसका कर दो, और ऐसा मेरे पास जब कोई सीज़न होता है बच्चों का कहीं जाने का, तो उसमें दिन में 10-20 आ ही जाते हैं, और कई बार रिपीट आता है, जैसे कि JNTU का ही 5 आया, फिर किसी का उस्मानिया का 2 आएगा, HCU का 1 आएगा. सो नाउ यू नो वेयर वी फाउंड दैट इनोवेशन, वी फाउंड ओके इसके पूरे कंटेंट में 90% ऑफ द कंटेंट सेम रहता है, उसका 5 फॉर्म में 5 डिटेल है, वो बदल जाता है, फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है. अब उसको यदि वैसा ही फॉर्मेट में, लेकिन अरबिक में या स्पेनिश में या फ्रेंच में या हिंदी में, जैसा भी चाहिए, वी आर कैटरिंग करेंटली इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, बट दैट कैन बी डन फॉर अरबिक, दैट कैन बी डन फॉर स्पेनिश. वी आर करेंटली नॉट डूइंग इट, बट द होल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स दैट. वो लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए सर्विस प्रोवाइडर वी विल सी ओके दिस इज ए न्यू फॉर्मेट विच हैज़ कम टू अस, सो वी विल put the machine at work, extract everything, scan everything, and then try to figure out what is a static, what is variable portion. Once we figure out, we templatize it कि okay ये template है. अब मशीन समझ सकता है कि ये template है, अगली बार वो क्या करेगा, वो जानता है कि जो नाम है वो और वो 5 चीज़ निकालना है, ये ऑलरेडी है मशीन में, तो क्या करता है, इसकी एक्यूरेसी के लिए वरीड नहीं है. सी व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग इनोवेशन वी हैव डन. वी आर नाउ नॉट वरीड अबाउट द template part, we are worried about the variable part, date, enrollment number, naam, student details. So my machine does once, it has been vetted and saved for future use. Now perpetually this can work for next 5 years, क्योंकि अगले 5 साल 10 साल में टेम्पलेट नहीं बदलने वाला है, और ऐसे टेम्पलेट्स कितने होंगे, 200-300. हैदराबाद में इससे ज़्यादा टेम्पलेट नहीं आते होंगे भाई, इतने ही तरह के बच्चे आते होंगे हैदराबाद में. सो एनीबडी हु सब्सक्राइब्स टू दिस सर्विस कि मैं इसका सर्विस देना चाहता हूँ, दे कैन यूज़ आवर प्लेटफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट 3 months दे विल हैव ऑल टेम्पलेट्स कैप्चर्ड. देन व्हाट दे कैन डू, दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विस, लिंग्विस्टिक सर्विस, फॉर वट एवर लैंग्वेज दे वांट, एंड उनको वेटिंग भी नहीं करना पड़ता है. उनको तो सिर्फ नाम ग्राम पता है, जो उनको पता है कि ये सब जनरली ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में आते हैं, इनका गलती नहीं होता. मशीन इनको एक बार मशीन को समझा दिया तो पवन कैसे लिखना, पवन ठीक ही लिखता है और हर बार ठीक लिखेगा, गलत नहीं लिखेगा, राइट. ट्रिपल को क्या लिखना है एक बार समझा दिया तो हर बार ट्रिपल लिखेगा, गलती नहीं होगा. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग वी हैव स्केल्ड. यदि ये लार्ज स्केल प्रॉब्लम है जो बार बार आता है, रिपीटेड होता है, तो मशीन का रोल है, अदरवाइज मशीन को नहीं चाहिए कोई दिक्कत. तो
अभी ऐसा बहुत सारा, जैसे कि यू मान लीजिए आप, अभी दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली कंज्यूमर जो गुड्स बेचते हैं, उनके पास इन्वॉइसेस होते हैं, वेरियस फॉर्म्स होता है, जो लीगल फॉर्म्स है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का फॉर्म्स है, इन्वॉइसेस है, या रियल एस्टेट के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके पास रेंट एग्रीमेंट होता है. वो रेंट एग्रीमेंट रन्स इनटू 50 पेजेस एंड इट इज़ फ्रॉम 250 कस्टमर्स, राइट, एंड दे वांट टू ट्रांसलेट इट फॉर वट एवर रीज़न. अभी लिटिगेशन हो गया तो हाई कोर्ट में देना है, तो हमने रेंट एग्रीमेंट मान लीजिए तेलुगु में बनाया था, हाई कोर्ट को तो इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश में देना है, तो कैसे करेंगे? हमारा कहना है कि ये सब जो टेम्पलेट बेस्ड है, विच हैज़ वेरी लेस वेरिएबल कंपोनेंट एंड मोर ऑफ ए कंपोनेंट, देयर यू कैन यूज़ दिस, and then there we have a searchable text. Now if you think of a law firm or a accounting firm, they have huge data, court proceedings 400 pages, ऐसा 700 कोर्ट प्रोसीडिंग्स उन्होंने अपने यहाँ रखा हो. अब उनको जब लीगल रिसर्च करना होता है तो उनको ढूंढना होता है. अभी जो एक सॉफ्टवेयर आता है उसका सिंगल यूजर लाइसेंस, जो टिपिकली आप हाई कोर्ट का किसी दिन आप प्रोसीडिंग देखें, यदि हाई सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके मशीन पे चलता है, वो एप्पल में ही वो सॉल्यूशन आता है, उसका कुछ नाम है, फ्लूइड समथिंग ऐसे नाम है. वो 25,000 या सालाना का लाइसेंस है. वी सेड वी विल गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन इफ समबडी इज इंटरेस्टेड एंड दैट विल बी प्रिटी चीप. क्योंकि किसी आदमी को 700 पेज का प्रोसीडिंग्स में ढूंढना है कि ये वाले एक्ट के अगेंस्ट कहाँ कहाँ पे क्लॉज है और मुझे क्या क्या साइट करना है. कि विथ ए क्लिक ऑफ ए बटन इट विल, सिंस इट हैज़ स्कैन्ड द OCR, इट हैज़ made it into searchable text, and after searchable text it has indexed the text for search requirement, so it can actually take you to the page number 24, ये जगह पे ये quoted है, पेज नंबर 37 यहाँ पे, टिपिकल सर्च दैट यू डू इन एनी एडोबी, राइट. लेकिन ये सब तो अभी ऐसा पेज में है, उसमें सर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो आते हैं वो कागज़ में होते हैं. आप उनके सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड करेंगे तो वो फाइनली वो सॉफ्ट कॉपी PDF है, तो उसको भी तो सर्चेबल बनाना है. तो ये सभी सर्च इंडेक्स, फिर अपने हिसाब से कुछ एनोटेशंस भी करके आप रख सकते हैं. यू कैन पुट सम बुक मार्क. सो दिस काइंड ऑफ ट्रिवियल थिंग्स वी हैव प्रोवाइडेड इन अवतार वेयर वी वर्क. सो वी टोल्ड देम कि ये सभी चीज़ इसका पार्ट है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, टिपिकली वी हैव थॉट ऑफ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अकाउंटिंग फर्म, लॉ फर्म, पेटेंट सर्च, प्लेगरिज्म, इन सब चीज़ों के लिए वो यूज़ हो सकता है. But their translation also you do for all? Suppose you want to give that court proceedings to high court, lower court का court proceedings to high court. High court wants it in English. So मराठी में था, इंग्लिश में देना है. तेलुगु में था, इंग्लिश में देना है. अभी क्या होता है कि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उसको वो तुरंत सुधार भी नहीं सकता है. हमारे केस में यदि बाई चांस समबडी से कोई गलती हुआ तो हम बोलेंगे 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा करके देता हूँ तुरंत, कहाँ पे है. तो एक गलती को हम इमीडिएटली, सिंस वी आर यूजिंग सम टूल, वी कैन रेक्टिफाई इट फास्टर एंड कंसिस्टेंटली, बिकॉज यू आर यूजिंग सम टूल, सम प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव built in those mechanisms, and we start learning everything. Whenever we see that okay ये भी डाल सकते हैं, हम उसको फटाक से प्लेटफॉर्म में एक फंक्शनैलिटी की तरह प्लग कर देते हैं, वो काम करने लगता है आगे. और ये टिपिकली बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, हम उसको कैटर नहीं कर पा रहे हैं. हमें प्रोफेसर जवाहर हैज सेड कि वो कुछ तेलंगाना हाई कोर्ट का कुछ है करना, सो जिस दिन वो लोग आते हैं हम तुम्हें बुलाएंगे, तो बहुत हाई वॉल्यूम है. इसी तरह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वेरी हाई वॉल्यूम, लोकसभा वेरी हाई वॉल्यूम. सो दे विल टेल यू ये कर सकते हैं क्या, एंड दे विल पुट यू, वो 2 महीने में करना. बोलते भाई अभी इस लेवल पे हम नहीं है कि 2 महीने में कर दें, आप कुछ प्रॉमिस करो, कमिट करो, फिर हम मैन पावर रिसोर्स बढ़ाएं. सो things will take time to pick up, but then those are the future requirements and they are perpetual requirement. They are going to remain. So all this has happened because of the भासनी चैलेंज में जो प्रोडक्ट बनाया उसका ये सब फीचर है, उसका ये सब ऑडियंस है. Anyway, translation engine is there, so we have those translation things. Okay. Similar was a case with clinical trial. उसमें भी जो कंसेंट फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे ऐसा टेम्पलेटाइजेशंस होता है. बट देन यू नीड टू नो कि चेंज 2 ही जगह हुआ, बट वो 2 जगह जो चेंज हुआ उसको ह्यूमन इंटरवेंशन सही करेक्ट करना है. वो ऐसे भरोसा नहीं छोड़ सकते कि वो काम चल जाए. या थिंक ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी लाइक फार्मेसी का होगा, वहाँ पे वो कोई बोलेगा कि निर्देश तो 12 सेम ही है, लेकिन 13वां उन्होंने ऐड किया है.
हाउ डज मशीन नो कि 13वां ऐड किया है और 13वां ही गलती हो गया है? सो द मशीन एक्चुअली, प्लेटफॉर्म एक्चुअली टेल्स यू दिस इज समथिंग वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। दैट इज़ व्हाट वी से कि तुम्हारा कॉग्निटिव जो तुमको ढूंढना भी पड़ता है वो कम ढूंढना पड़ेगा, बताएगा मशीन की कहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। मशीन को हम यही सिखाने का कोशिश, और तो एम्प्टी लोग बना रहे हैं। सो वी आर रियली, लेट मी पुट दैट, Yeah, what हम differentiates you from the वी आर others? नॉट इनटू एम्प्टी बिल्डिंग। Okay. मशीन ट्रांसलेशन की टेक्नोलॉजी हम नहीं बिल्ड करते। वी आर सेइंग वी आर एग्नोस्टिक टू एनी टेक्नोलॉजी। सो वॉट एवर टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल वी विल प्लग इन इनटू आवर प्लेटफॉर्म, एंड आवर प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड ए प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स, accuracy benefits and turnaround time benefit. Obviously it can provide you some cost benefit depending upon what is the context. वो हम बात नहीं करते, हम बोलते भाई वो तो केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। कभी हमें कॉस्ट हो सकता है, एंकर कर रहा हो तो हम आपको कॉस्ट है। आपको कभी हो सकता है कि आपको लगे कि ये काम सस्ता है, आप मैनुअल ना कराना चाहें, वो आप करा सकते हैं। बट बेसिक 3 पॉइंट्स है कि कॉग्निटिव लोड गिराता है। अब कॉग्निटिव लोड कैसे घटाता है, तो ये सब बेसिक पैरामीटर्स हैं जो मेजरेबल। एनीवे वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑल्सो कि कॉग्निटिव लोड घटाता है, इसको हम डेटा पॉइंट्स में समझा पाए। वी वर वर्किंग विद IIT दिल्ली फॉर फ्यू मंथ्स, बट दैट गॉट डिसकंटिन्यूड ड्यू टू कोरोना एंड ऑल, तो अभी कुछ हुआ नहीं। देखेंगे, वो भी कुछ करेंगे। बट आवर एम इज़ कि जो भी आदमी काम कर रहा है AI टेक्नोलॉजी के साथ लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उसको हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। कैन बी असिस्ट हिम टू सी टू इट दैट एक्यूरेसी इम्प्रूव्स ऑफ वॉट एवर ही प्रोड्यूसेस, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स एंड टर्न अराउंड टाइम रिड्यूसेस। So, but right now you said it's like you're focused on text-to-text translation. Do you want Primarily, to get into yes, we are trying to speech? get into speech. Which lot one? of Text enquiry. to speech or speech to speech? Both. Isn't it? एक्चुअली लोगों का इंक्वायरी आ रहा है, हमारे वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविड्थ, बिकॉज फंडिंग हमारा जो है भी एंजल फंडिंग से हम चलते हैं, और अपना रेवेन्यू जो भी आता है उससे होता है। So how big is your team right now? सैलरीड में आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10 लोगों का टीम है, बट द लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाले जो लोग हैं जो मैनुअल इंटरवेंशन के, वो हमारे फ्रीलांसर्स पूल है। वी हैव फ्यू इन हाउस पीपल एंड देन वी हैव अ लार्ज टीम ऑफ फ्रीलांसर्स, प्राइमरीली बायस्ड टुवर्ड्स फीमेल जेंडर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचिंग में हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या फिर लैंग्वेज में उनका शायद बहुत है वो ज़्यादा नंबर में है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह के काम के लिए वही लोग मिले हैं अभी, और दूसरे लोग जो हैं वो जर्नलिज्म के फील्ड में हैं या फिर वो नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो ट्रांसलेशन जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देम कि यहाँ की बजाय मैं कहीं और कुछ करूँगा। Do you have a photograph of your the whole founding team or the team basically? हाँ, वो तो राशिद दे देगा, वो राशिद दे Take one if since you are here anyway. देगा। नहीं, राशिद भेज देगा, कुछ ना कुछ होगा इसके पास। Yeah, you can. Some past will, otherwise we'll take it. Yeah, take one nice one. बेसिकली हम जो हमने कहा कि हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से, इंजीनियरिंग इंटरवेंशन से कुछ लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारा मिशन, हम क्या कंट्रीब्यूट, मिशन भले वो मिशन में बहुत लोग कर रहे होंगे, वो मिशन का स्टेटमेंट सबका अलग अलग होगा, बट गोल सबका एक ही होगा, बट क्या हम उधर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बना के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। No, but actually coming back to your original, this thing, that motivation, we still don't have question papers in different languages, na? So do you see that happening in the near future? Because यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी में, अब होना और नहीं, अब सुन लीजिए होता क्या है। यूपीएससी के बच्चे उसको अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि हिंदी में क्वेश्चन पेपर पढ़ के यदि जवाब दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, और हर बार 1 या 2 गलती आती ही आती है। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन न्यूज़ आइटम्स, बट नोबडी टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ दैट, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मैंने कहा, आई टोल्ड नीति आयोग एट IIT दिल्ली, वन ऑफ द बिग कॉन्फ्रेंस, जो मैं आपको भी कोट करता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं और NLP के सब अच्छे रिसर्चर बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT के लोग बैठे हैं, और नीति आयोग का सेकंड हायरार्की बैठा हुआ है,
बाई चांस मैं नाम से जानता हूँ कि आप लोग सेकंड हायरार्की में आते हो, टॉप वाले में 5-6 लोग जो हों, मैं नहीं आप। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू स्पीक देयर। प्रोफेसर पुष्प भट्टाचार्य सेड कि कुछ तो आके बोलो, अपनी ही भाषा के बारे में बोलो। मैं बोला सर मैं जो भी बोलूँगा ऑफेंड करेगा तो फिर आप बाद में नहीं कहिएगा। ये बोले डोंट ऑफेंड एनीबॉडी बट जस्ट स्पीक अबाउट इट। एंड देन आई स्टार्टेड विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल ड्यू एपोलॉजी, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। और मैंने कहा कि देखिए क्या होता है कि जो NLP सिस्टम पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन, और नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल अदर सिस्टम, I look to all NLP research from a very distance because I have never been a core researcher. I see from a distance. I am a software engineer, simple or nothing else. I understand little bit of engineering. But the evaluation metrics that you people have and the methodology of evaluation is faulty. I am not saying technically, I am saying the spirit wise and the approach wise. इट इज़ नॉट टेक्निकली फॉल्टी, टेक्निकल में वही काम करना है लेकिन अप्रोच में फॉल्ट है। आपको अंग्रेजी आती है, आपने अंग्रेजी पढ़ लिया और हिंदी भी आती है, तो आप जब अंग्रेजी और हिंदी को देखते हो तो आप बोलते हो हाँ यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, गलती है। एंड देन you, even if you have developed that technology with so much of passion for 40 years, अच्छे रिसर्चर्स अपने यहाँ जो 30 साल 40 साल अपना लगाए हैं, मैंने उन सबको कहा, लेकिन आप लोग ये समझते नहीं हैं कि आप इवेलुएट करते ही सब कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि आपने जो काम किया ये आपको ही नहीं पता कितना पावरफुल है। आपको इसको पता करना है तो ऐसे आदमी को जाके पूछिए जो अंग्रेजी का ए भी नहीं समझता है, वो हिंदी दिखाइए और उसको पूछिए कि तुमने क्या समझा ये पढ़ के, वो आपको बहुत कुछ सही बताएगा, उसके काम का होता है टेक्नोलॉजी। सो दैट इज़ वेयर ट्रांसलेशन का रिक्वायरमेंट है कि भाई वो जो आदमी देख रहा है अंग्रेजी, उसको नहीं समझ में आ रहा अंग्रेजी, आप क्या करते हैं, आप बाइलिंगुअल होकर हिंदी को पढ़ना चाहते हैं और फिर आप रिडिक्यूल करते रहते हैं टेक्नोलॉजी को, जबकि टेक्नोलॉजी एट ईच स्टेज इज एक्चुअली वेरी गुड एज लॉन्ग एज इट इज़ फॉर मोनोलिंगुअल पीपल। आप उस जगह पे जाने का कोशिश करते हैं कि मैं डम बन के मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं, मैं हिंदी पढ़ूंगा, ऐसा होता ही नहीं है। आप तो असली में वो हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज में वो नॉलेज है। आप फिजिक्स के किसी आर्टिकल का हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो आप फिजिक्स ऑलरेडी जानते हैं, तो आप तो जाना हुआ चीज़ को वहाँ सिर्फ देखते वेट कर रहे होते हैं, आप उसको पढ़ के जानने का कोशिश नहीं करते हैं। सी यू आर नॉट ट्राइंग टू रीड समथिंग एंड गेट information, you already have information being a educated person, and then you are trying to only vet that information is correctly put or not. This is a very wrong approach because this really doesn't cater to the usability part. User का usefulness आप कभी नहीं appreciate कर सकते हैं इसमें। In principle they might all know this what I have talked, but when you have to practice it, then it comes to that. So the papers are in both English and Hindi, is Right. it? New education policy they have started a lot of things. उस सब में गलतियाँ रहती हैं, आप ऐसी गलतियाँ रहती हैं जो आप सोच नहीं सकते कैसे बनता है। आजकल क्या करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का कुछ रिक्वायरमेंट है, सैक्रोसेंट होना है, एक रूम के अंदर डाल दिए, वहाँ पे जो आदमी को कहा जाता है वो बेचारा धीरे से गूगल यूज़ कर लेता है और फिर उसको खुद लगता है कि ठीक ही है, भेज देता है। और जब वो एग्ज़ाम में जाता तब वो पब्लिक में आता है ना, somebody tells him क्या लिख दियो, कॉजैलिटी उल्टा लिख दियो क्वेश्चन में, अब वो सोचता है यार ये तो गलती है। नाउ ही कांट डू एनीथिंग, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लोगों के टेबल पे पड़ा है। सी इफ़ यू डोंट टेक द टेक्नोलॉजी टू दैट लेवल जहाँ पे उसको गैजेट की तरह है, मतलब उसको पता है कि मैं इस टेक्नोलॉजी में करके देख लूँगा, ठीक से समझ लूँगा, मैं गलती नहीं करूँगा। आपने टेक्नोलॉजी को उस रूप में बना दिया है कि वो ट्रांसलेशन करेगा और वो रूम के अंदर बंद होगा फिर करेगा, ऐसा नहीं करना। वी आर प्लानिंग, हमें NIA ने एक बार पूछा कि आप ये हमें ट्रांसलेशन करना होता है तो एक तो है कि सीक्रेसी का रिक्वायरमेंट है, इट हैज़ टू बी सीक्रेट, एंड दूसरा है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ट्रांसलेशन आपके लोग करें और हम इंटरनेट पे भी नहीं करना चाहेंगे। सो व्हाट कैन यू गिव अस? सो वी टोल्ड देम कि वी विल प्रोवाइड यू ए स्मॉल बॉक्स, उसके अंदर एम्प्टी इंजन हम डालेंगे, राइट,
एंड आप उससे ट्रांसलेशन करो, आपका कोई कंटेंट बाहर नहीं जाएगा और आपका कोई आदमी भी कंटेंट पढ़ तो सकता है लेकिन बाहर नहीं ले जा सकता क्योंकि वो डिजिटली एक्सेसिबल नहीं है, इट इज़ डिसकनेक्टेड. सो दे वर हैप्पी बट थिंग्स नेवर मटेरियलाइज्ड. अगेन वी नेवर पुट इन आवर मनी बिकॉज वी डू नॉट हैव मनी. तो ये एक दो रिक्वायरमेंट आया. एक तो एग्जामिनेशन जो लोग देते हैं उनसे रिक्वायरमेंट आया, मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उनसे रिक्वायरमेंट आया, NIA से रिक्वायरमेंट आया था ये, बट अभी हमने किया नहीं. So again, just add one more thing because we share about the Niti Aayog evaluation kind of thing. So it is again for conviction part. At the time of MS by research from here, I went to Spain for the paper presentation. लैंग्वेज कितना पावरफुल चीज़ है वो बता रहा है. आप अंग्रेजी उसे आती है, ऐसे नहीं है. हम सब अंग्रेजी काम चलाओ अपना काम चला लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ वो बता रहा है, उसको ध्यान दीजिए. I landed to Spain, Valencia airport and just take the ticket from the counter from the airport because in the Europe normally all the airports are connected with the train. Okay? So I thought train is cheaper as compared to the private car. So I just go and because I know that where I want to go, University of Polytechnic, okay, Valencia. So I just take university ticket. So whatever I have currency at that point of time, I just give it. He gave me a ticket and I just sit the train. Okay. Once I cross one station or the second station, I thought because of everything is written in Spanish. I don't know Spanish. So I just little worried. So I just started chatting to the people of the train. I want to go University of Valencia, to where I want to get it. So they can't understand me, and I am also not want to understand me. I am more worried. Next stop. So I go to the next people. Same thing. So I have tried 2-3 people, but I am not able to understand them, and they are also not getting understanding. And at that point of time, this translation and all is not that mature at that. You can use it for the purpose. So I have Matrix Mobile at that point of time. The Matrix is one of the service provider which works on international call. I just called to Mukul Sinha from the Expert Software. Sir, I am unable to communicate that, and I am in the train, and I want to go to that place, but I am unable to communicate it. So sir said, okay, you can just go back to the airport and take the taxi and go to that place. So in the next step, I just deboard the train and just change the station, and the reverse train is coming. I just sit it and go back to the airport, and then I just take the taxi. And then taxi is very costly at that even in the Europe, but because of this communication and it is it's not a India, it is overseas, so we have a fear and all like that. रात के 7 बजे 3 लोगों से पूछा और उन तीनों ने जवाब नहीं दिया, तो इसके पास इतना पैनिक हुआ, इसको लगा कि रात हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा. और इसको ये बता दिया गया था कि यूरोप में एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं शाम को. सो ही पैनिक्ड एंड ही कॉल्ड मुकुल. मुकुल सेड whatever he suggested him, Mukul called me also. He said just talk to him. I called him back. I said कि बस Mukul, as Mukul had told him, he said बस immediately उतर जाओ, जो भी स्टेशन से चढ़े थे वहाँ चले जाओ, and take a taxi and tell him कि मुझे इस जगह जाना है, ऐसे दिखाना. रीडिंग लैटिन है, वो समझ जाएगा, तुमको छोड़ देगा. और यूरोप है, इतना भी डरना नहीं है. स्पेन इज़ ओके, फाइन प्लेस. नाउ सी, इफ़ यू रियली डू नॉट understand the pain, I am not saying you have to undergo the pain, I am saying understand the pain of the person who needs it. You don't see opportunity there, you don't see requirement there. If you understand that pain, you see कि नहीं यार ये worth doing है. And he has faced it in real life. 2 बार इसका कहना है कि मैं भाई जब एग्ज़ाम लिखा और जब एग्ज़ाम के बाहर आया तो जब डिस्कस कर रहा था तो मुझे दोस्तों ने बोला इसका ये पूछ रहा है, तो बोला ये तो मुझे पता है. बोला लिखा क्यों नहीं? बोला ये तो वहाँ नहीं पता था ना, यहाँ पता है, तुम बोले हो तो पता है. और इसी तरह स्पेन में 2010 की बात है, ये फंस गया.
तो वो एक ये लगता है कि नहीं यार ये करना है, तो उसके लिए वो पैसन भी है कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे कंटेंट में कुछ हो ऐसा जो भी मैं कर पाऊँगा करूँगा। तो एज ई भाषा वी विल कीप ऑन डूइंग दिस। So, but why e-bhasha? Like, did you? It's just Lot of people suggested that name. One person was Dr. Vineet Chaitanya. तो भाषा हमारा ई भाषा सेतु नाम है। भाषा सेतु मीन्स ब्रिजिंग लैंग्वेजेस। पर्टिकुलरली इंडियन लैंग्वेज में था तो इसलिए भाषा एंड सेतु, इट कुड हैव बीन समथिंग इन इंग्लिश। स्टिल लॉट ऑफ पीपल से इंग्लिश नाम नहीं है, बहुत दिक्कत आएगी बाद में जाके। हम बोले कोई बात नहीं है, तब की बात तब सोचेंगे, तुमको पता है गूगल का असली नाम क्या है। तो आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, तो पीपल विल से गूगल का असली नाम गूगल नहीं है। एनीवे गूगल का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? वो भी नहीं पता है। सो वाई देयर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट। गूगल मीन्स 10 to the power 100 एंड गूगल का पेरेंट कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है, वो गूगल नाम है ही नहीं उसका, तो गूगल ट्रेड नेम है उसको। एंड गूगल इसलिए ट्रेड नेम डाला क्योंकि उसका मानना है कि अर्थ के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन है हम उसको जमा करेंगे एंड दैट इंफॉर्मेशन दे हैव एब्स्ट्रैक्टेड कि 10 to the power 100 के बराबर होगा। सो दिस इज़ अ स्टोरी बिहाइंड। तो ये सब लोग बोलते हैं ई भाषा, ही इज़ गिविंग दैट रेस्पेक्ट टू एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर का वो ई है टू हिज मेंटर। Another is E for electronic. So we are just like that. But E and electronic, so we have E square. Like that. So bridging the language gap basically. Okay. So, but you kept talking a lot about Hindi. Other languages? अदर you're लैंग्वेज doing, right? इक्वली पार्ट वी हैव बिन डूइंग। जब भी आता है हमारा, जैसे हमने वेब कंटेंट किया है 5-6 भाषा में, अलग अलग वेबसाइट को किया है, राइट। हमें एक आध जगह से 10-12 भाषा का ऑर्डर है, हम करते हैं। हमारा इन हाउस प्रॉब्लम ये है कि इन हाउस हमारे पास बहुत लोग नहीं हो सकते, इसलिए हम टर्न अराउंड टाइम नहीं बता पाते हैं बहुत लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने में यह काम होना चाहिए, बोलते नहीं होगा, तो वो बिज़नेस हमारे हाथ से चला जाता है। सो एंड देयर वी से कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी बिकॉज वी हैव सेड पब्लिकेशन ग्रेड ट्रस्टवर्दी ट्रांसलेशन या लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम करेंगे, तो वो ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए बिकॉज नोबडी विल कम बैक टू यू to your content or even to us for getting services. They will say they are not trustworthy because as I told you, यदि आप किसी भी किताब या न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसा चीज़ में 2-3 गलतियाँ मिल जाएंगी, you are put off, you don't read that. You simply say क्या लेके आ गया यार इतनी सी, जबकि आप कंटेंट समझ रहे हो लेकिन फिर भी वो गलतियाँ, वो नेचुरल कॉग्निशन वांट्स ट्रस्ट बिकॉज दैट इज़ आवर इंस्टिंक्ट। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट, हम बात तक नहीं करते हैं किसी से। मान लीजिए आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि क्या बता के सब झूठ चला जाएगा, तो आप सोचेंगे कि यार ठीक है पूछ लिया, अब इनका साइट में देखूंगा असली में क्या लिखे हैं, या आई विल टॉक टू प्रोफेसर जवाहर वेयर ही हैज सेड कि ही नोज वी हैव डन वर्क विथ हिम, और प्रोफेसर दीप्ति मिश्रा और मे बी मिस्टर लोंगनाथन, उनसे इनका इंटरेक्शन है, तो लेट मी आस्क देम ऑल्सो एंड यू शुड, आई एम टेलिंग यू शुड आस्क देम। तो ये नेचुरल होता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो हमने कहा है ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए। हम किसी दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं, फाइनली वो चीज़ तो हमको रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना, वो इनडायरेक्टली हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरीली वो उस वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फाइनली वो कंटेंट हमने दिया उनको, हमने ट्रांसफॉर्म करके दिया। सो ट्रस्ट शुड ऑलवेज बी देयर एंड इट इज़ फॉर करेंटली वी आर डूइंग। हम अरेबिक का भी एक आध बार ट्राई किए हैं लेकिन हमारे पास कुछ बिजनेस नहीं आया है। एंड आवर प्लेटफॉर्म इज़ डिज़ाइंड इन सच ए मैनर कि हमें जिस भी लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज आएंगे हम उसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमको किसी अरबिक ट्रांसलेटर को अपना प्लेटफॉर्म देना हो तो हमें लिमिटेड छोटा सा डिक्शनरी है, वो सब चीज़ है हमारे पास, ऐसा नहीं है। बट सिंस हमें बिजनेस नहीं आया तो वी हैव नॉट डन मच वर्क ऑन दैट फ्रंट। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि आप फॉरेन लैंग्वेज में क्यों नहीं करते, पैसा है उधर। हमने कहा कि उधर बहुत लोग करने वाले हैं, और दूसरा है हमें कौन सा बिज़नेस आया है जो हमने रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास तो बिज़नेस नहीं आया है, आएगा तो कर लेंगे। लेकिन यस, डू वी हैव द इन हाउस कैपेबिलिटी और द लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज और द एक्सपीरियंसेस टू डू देम? नो, वी डू नॉट हैव करेंटली। तो अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में वी हैव अ स्ट्रेंथ, वी हैव अ वीकनेस। तो बेसिकली इन आवर टीम दैट business development is still we are looking, we have tried many people but still
because this is a very special area. How to sell all this is very tricky. It's not a commodity kind of thing that we go to the shop and buy the milk and like that. Here people are taking so lightly. कोई नहीं हिंदी में नहीं है तो नहीं है, because of lot of judicial requirement that your pamphlet everything should be in the local language. But people not care it like that. Lot of compulsion that pharmaceutical manual should be in that language, but nobody is care it here. It's a legal requirement, but it's still not doing it. There's not much enforcement actually. Correct. So this field is still evolving, and it's challenge to Lot of users are there, very few consumers are there. everybody wants this, but nobody want to pay. Pay for it. Yeah, this is the most. No, it is not that they don't want to pay, they can't pay. And that is why somebody has to think what is the intervention required. So institutional intervention, civic society's intervention is required, government intervention is required. Because समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज को सोचना है. So it is not as I told you, it is there is a large user base who needs this, but we do not have consumers. So we are still working with the languages. We do not have any linguistic resource, any sentences, any dictionary also. So which language is that? Very हमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, scarce. so we say कि we will cater to those because of the technology का somehow enablement. We say कि we can figure out a way where we will start working and bootstrap things, and after that you can reiterate, and multiple iterations we will come to a level where something usable comes out. So that is also tribal languages, especially where the speakers are very less, maybe 5 lakhs or 10 lakhs like that. So there are some NGOs, those are working with them. So somehow they can. हम उनको हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं. So those कई बार प्रो बोनो भी है, कई बार I was just going to say that, because as it is, regular users don't have money, and then tribals, so it's like a इसलिए मैंने दोनों बात कहा कि कभी प्रो बोनो भी हो सकता है, कभी अदरवाइज भी है, ऐसा नहीं है, दोनों केस है. कुछ लोगों ने हमें कहा कि गोंडी के लिए कुछ करेंगे, तो हमने समझाया कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, कुछ करके भी दिखा दिया. फिर किसी ने कहा कि इसके लिए भी करेंगे, हम इतना कुछ हमारे पास कुछ फंड है, सो वी हेल्प देम बिल्ड रिसोर्सेज एंड ऑल. वी डू मोस्टली कि कुछ इंजीनियरिंग इनोवेशन करना है तो हम इंटरेस्टेड होंगे, पैसा है तो हम बहुत दूर तक कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके. बट आवर बेसिक फोटे इज डूइंग समथिंग. NLP इनोवेटिव होना चाहिए, NLP के डोमेन में होना चाहिए, और इंजीनियरिंग से एस्पेक्ट से होना चाहिए, नॉट कोर रिसर्च. वी आर नॉट इनटू कोर रिसर्च. मेरे हिसाब से और कुछ No, I think I just realized it's 5 o'clock. I didn't realize. सॉरी, मैंने आपको डिलीट कर sometimes when we are talking, the time is not, because